وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ قیامت کے دن جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے، جبکہ اس دن ظالموں کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا، ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ ذرا اندازہ کیجئے، ایک مشرک جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بچاؤ کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں مومنوں کو اس کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن فرشتے اس کو جہنم میں جلتے دیکھنے کے باوجود اس کے لیے دعا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ اس کی اپنی دعا بھی ضائع چلی جاتی ہے، اور قیامت والے دن ان کو نہ ان کی معذرت فائدہ دے گی، نہ ان کے لیے کوئی کسی قسم کی نرمی نہ ہوگی، جبکہ مومنوں کے لیے اللہ کی مدد اس دن بھی ان کا ساتھ دے گی۔ ان کے لیے قیامت والے دن لعنت ہوگی اور برا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنا دیا، جو کہ عقل والوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، اپنے رب کی تسبیح کیجئے صبح اور شام۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہے، ان کے سینوں میں تو اصل میں تکبر بھرا ہوتا ہے، وہ اس تکبر کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ جو لوگ اللہ اور اس کی آیات کے بارے میں کج بحثیاں کرتے ہیں، ان کا اصل مرض تکبر ہوتا ہے، جس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وہ تکبر تو کرتے ہیں، حالانکہ وہ تکبر کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ تکبر صرف اللہ کو روا ہے۔
इंसान जहां तक भी पहुंच जाए वो अल्लाह का मोहताज ही रहता है। तो जो शख्स मोहताज हो तो उसको तकब्बुर सेवा नहीं है। तो ये जो लोग अल्लाह की आयत में झगड़ा करते हैं तो इनका असल मर्ज तकब्बुर है, जिसके इलाज के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है। ए नबी, आप उनकी शरारतों से अल्लाह की पनाह में आ जाइए। यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। जमीन और आसमान को पैदा करना लोगों के पैदा करने से ज्यादा बड़ा है, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और जिन्होंने बुरे अमल किए, ये भी बराबर नहीं हो सकते। थोड़ा है जो तुम नसीहत करते हो। मुख्तलिफ किस्म के लोगों का जिंदगी में तर्ज अमल मंतकी तौर पर यह तकाजा करता है कि बुरे लोगों को उनके जराइम की सजा दे दी जाए और नेक लोगों को उनकी नेकियों की जजा दे दी जाए। बेशक कयामत आकर रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। कयामत ना आती तो ये अकल से दूर था। कयामत का आना एन अकल के तकाज़ों के मुताबिक है, क्योंकि हम देखते हैं हमारी जिंदगी में लोगों के हालात में बड़ा फर्क होता है। कोई शख्स जालिम है, कोई बेचारा मजलूम है, कोई शख्स बहुत नेक है, कोई शख्स बहुत बद है, कोई शख्स इतना जालिम है कि उसने अपने जुल्म के साथ पूरी दुनिया को भर दिया होता है और उसको उसके जुल्म की सजा दुनिया में सुनाई ही नहीं जा सकती। ऐसे लोगों के लिए एक दिन आना चाहिए जिस दिन अल्लाह ताला उनको करारे वाकई सजा दे। जैसे उन्होंने दुनिया को जुल्म से भरा था, उनको उतनी ही सजा दी जा सके, और इसके लिए कयामत का आना लाजमी होना चाहिए। इसी तरह आपने देखा होगा कई लोग बेचारे इतने मजलूम होते हैं जिसमें उनका कोई भी कसूर नहीं होता। अल्लाह ताला एक दिन ऐसा जरूर लाएगा जिस दिन उन पर जुल्म करने वालों से पूछा जाएगा तुमने इनसे क्यों जुल्म किया था, और उनके जिसने उन पर जुल्म किया होगा उसको उससे सजा सुनाई जाएगी। और तुम्हारे रब ने कहा मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। यकीनन वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जहन्नुम में जलील करके दाखिल किए जाएंगे। नौमान बिन बशीर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया दुआ असल इबादत है। और फिर ये आयत पढ़ी कि मैं तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, चूंकि दुआ इबादत है, जो लोग अल्लाह से नहीं मांगते अल्लाह को उन पे गुस्सा आता है। असल बात यह है कि दुआ की असल आजिज़ी है, दुआ की असल आजिज़ी है, और अल्लाह को इंसान की ये आजिज़ी ही पसंद आती है। जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं करता इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के सामने आजिज़ नहीं होता, वो अल्लाह के सामने अकड़ता है। तो जो लोग अल्लाह मेरी मुझसे दुआ करने से तकब्बुर करते हैं, मैं उनको जहन्नुम में जलील करके दाखिल कर दूंगा। तो अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ताला हमें दुआ करने की खुद दावत देते हैं। हम अल्लाह से दुआ करें अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी मोहताजियों के लिए, अपने ईमान के लिए, अमले स्वाले के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपनी आखिरत के लिए। लेकिन वो अल्लाह ताला इस दुआ की इतनी कदरदानी करता है कि वो अल्लाह ताला इसको इबादत कहता है, वो इसको इबादत कहता है। और जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है। हदीस में आता है अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत है, दुआ इबादत का मगज़ है और ये दुआ खालिस अल्लाह ही से करने चाहिए। इस दुआ में गैर अल्लाह के वास्ते डालने शिरक के चोर दरवाजे होते हैं। और रमजान के दिन तो खालिस दुआ के दिन है। आपको पता है कल से ताक रातें शुरू हो गई हुई हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूलुल्लाह अगर मैं लैलतुल कदर पा लूं तो मैं कौन सी दुआ करूं?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुझे माफ करना बड़ा पसंद है, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। तो अब ये ताक रातें कल से शुरू हो गई हैं। रमजान हकीकत में दुआ का महीना है, रमजान दुआ का और इस्तिग़फ़ार का और तौबा का महीना है। चंद दिन रह गए हैं रमजान के। अल्लाह ताला की इस हदायत पर भी अमल कीजिए, अल्लाह के इस हुक्म पर भी अमल कीजिए, और अल्लाह ताला की जो रहमतों के दरिया इस वक्त बह रहे हैं उनमें से अपना हिस्सा वसूल कीजिए। तुम्हारे रब ने कहा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब वो जहन्नुम में जलील होकर दाखिल होंगे। अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुआ करता है जिसमें गुनाह या कता रहने की बात ना हो तो अल्लाह ताला 3 बातों में से एक उसे जरूर अता फरमा देता है। या तो दुआ के मुताबिक उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है, या उसकी दुआ आखिरत के लिए जखीरा कर दी जाती है, या दुआ के बराबर अल्लाह ताला उससे कोई मुसीबत टाल देता है। सहाबा कराम ने ये सुनकर अर्ज किया, तब तो हम कसरत से दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खजाने बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हारे लिए रात को पैदा किया ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बना दिया। अल्लाह ताला तो लोगों पर फजल करने वाला है, अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा रब है जो हर शय का खालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तो तुम कहां से बहकाए जाते हो। इसी तरह वो लोग बहकाए जाते थे जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया, आसमान को छत बनाया, तुम्हारी सूरतें बनाई, तुम्हारी सूरतें बड़ी खूबसूरत बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीजों से रिज़्क़ अता फरमाया। यही अल्लाह तुम्हारा रब है। तो बरकत वाला है अल्लाह ताला जो तमाम जहानों का रब है, वो जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी अल्लाह को पुकारो, उसके लिए इबादत को खालिस करते हुए। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। दुआ भी खालिस अल्लाह ही से करनी चाहिए। दुआ में भी अल्लाह के साथ किसी और को शामिल न करें, गैर अल्लाह से दुआ न करें, गैर अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा न समझें, ये वाज़ेह शिर्क। कह दीजिए, मुझे मना किया गया है कि मैं उन लोगों की इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, हालांकि मेरे पास अपने मेरे रब की तरफ से वाज़ेह निशानियां आ चुकी हैं और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए फर्मा बरदार हो जाऊं। वो जात है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा से, फिर जमे हुए खून से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। फिर तुम में से कुछ ऐसे हैं जो कि बूढ़े होने से कबल ही फौत हो जाते हैं, और ताकि तुम वक़्त मुकर्रा को पहुंचो और ताकि तुम अकल करो। वो वही जात है जो जिंदा करता है और मारता है। जब किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसको कह देता है हो जा, तो वो हो जाता है। पलक झपकते ही अल्लाह के अहकाम बजा लाने वाले अल्लाह के बेशुमार लश्कर हैं, जिनकी हकीकत और मिकदार को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला का हुक्म सादिर होना ही इस हुक्म की तकमील का ज़ामिन है। अल्लाह ताला कुन कह देते हैं और वो अल्लाह ताला के लश्कर उसको वजूद में ले आते हैं। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयत में झगड़ते हैं? वो कहां से फिराए जाते हैं। वो लोग जो इस किताब यानी कुरान को भी झुठला देते हैं और उनको भी जो हमने रसूलों को पहले किताबें दी थी, अनकरीब जान लेंगे जब उनकी गर्दनों में तौक होंगे, जंजीरें होंगे और वो घसीटे जाएंगे खौलते हुए पानी में। फिर उन्हें जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। फिर कहा जाएगा, कहाँ हैं वो तुम्हारे शरीक जिनको तुम अल्लाह के साथ
शरीक ठहराया करते थे, अल्लाह के अलावा शरीक ठहराया करते थे, वो कहेंगे वो हमसे खो गए, बल्कि इससे कबल तो हम किसी चीज को पुकारा ही ना करते थे। वहां भी झूठ बोलने से बाज ना आएंगे, वहां भी झूठ बोल देंगे कि हम दुनिया में तेरे साथ किसी चीज को शरीक ना करते थे। इसी तरह अल्लाह ताला काफिरों को गुमराह कर देता है। ये तुम्हारा अंजाम इस वजह से हुआ कि तुम जमीन में बगैर हक के इतराया करते थे और तुम जमीन में अकड़ते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर हो वो जन्नत में दाखिल ना होगा। असल तकब्बुर ये होता है कि इंसान हक को तस्लीम ना करे और अल्लाह की आयत का इनकार करते और इसके मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। तुम जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, तुम उसमें हमेशा रहोगे। तकब्बुर करने वालों का अंजाम तो बहुत बुरा होता है। ए नबी आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा तो बरहक है, अजाब का वादा बरहक है। अगर हम आपको दिखा दें उस अजाब का कुछ हिस्सा जो हम उनको जिसका हम उनसे वादा करते हैं, या आपको फौत कर दें तो ये हमारी तरफ ही लौट कर आएंगे। उस अजाब की एक किस्त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नाजिल हो गई, जैसे जंगे बदर, फतह मक्का वगैरह। दूसरी किस्त आपकी जिंदगी के बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर के हाथों इनको नजर आ गई। ये तो दुनिया में उनको सजा सुना दी गई, आखिर को इन्हें अल्लाह के यहाँ लौट कर जाना है, जहाँ जहन्नुम इनके लिए काफी होगी। और हमने अपने रसूलों को तुझसे कबल भी भेजा था, उनमें से कईयों के हमने तुझे किस्से सुनाए हैं और कईयों के हमने तुझे किस्से नहीं सुनाए। किसी रसूल में ये ताकत न थी कि वो मौजज़ा ले आता, हाँ अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि कोई नबी अपनी मर्जी से मौजज़ा नहीं ला सकता। मौजज़ा लाने का इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह का फैसला, अल्लाह का हुक्म आ गया, हक का फैसला कर दिया गया, तो उस वक़्त झूठे लोग, जुठलाने वाले लोग उस वक़्त खसारे में रहे। अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हारे लिए मवेशी पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और उनमें से तुम बाज को खा भी लेते हो। क्या यह हकीकत तुमको ये गौर करने की दावत नहीं देती कि ये जानवर भी इंसान की तरह जिस्म जान का ताल्लुक रखते हैं, इनका भी दिमाग है, मगर उन्हें इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया गया है। इंसान को ताकत, कुदरत और इजाजत दी गई कि इनमें बाज को ज़िबा करके खा ले और बाज को अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल में ले आए। तुम्हारे लिए इनसे फायदे हैं और ताकि तुम इनसे अपनी जरूरत पूरी करो जो तुम्हारे दिलों में हो, और इन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है तो तुम अल्लाह ताला की किस किस निशानी का इनकार करोगे? क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिर कर नहीं देखा तो वो देखते उन लोगों का अंजाम कैसे हुआ जो इनसे कबल थे। वो इनसे ताकत में भी ज्यादा थे, ज्यादा कुव्वत वाले थे, और जमीन में उन्होंने जो आसार छोड़े हैं वो इनसे बढ़कर थे। मगर जो वो काम कर रहे थे, ये सारी चीजें उनके कुछ काम ना आ सकी। जब उनके रसूल उनके पास वाज़े निशानियां लेकर आए तो जो इल्म उनके पास था उसी पर ही इतराते रहे, रसूलों की हदायत को मान कर न दिया। नतीजा क्या हुआ कि जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे उसी अजाब ने उन्हें आ घेरा। जब उन्होंने हमारा अजाब देखा तो कहने लगे, हम अल्लाह अकेले पर ईमान लाते हैं और हम जिनको अल्लाह का शरीक ठहराते थे हम उनका कुफर करते हैं। लेकिन आपको पता है, अजाब देखने के बाद ईमान लाना और शिरक का इनकार करना कोई फायदा नहीं देता। ईमान तभी फायदा देता है कि इंसान अजाब के आने से कबल ईमान लाए, और न सिर्फ ईमान लाए बल्कि उसके अंदर उसने अमाल साले भी किए हों। ये अल्लाह की सुन्नत है जो उसके बंदों में जारी है, और इस अजाब के मौके पर काफिर लोग खसारे में ही रहे। अल्लाह का तरीका यह है कि जब इत्माम हुज्जत हो जाती है तो फिर अजाब आ जाता है, और उस वक़्त अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को बचा लेते हैं और काफिरों को सजा सुना दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून। हम सूरत हामीम सजदा शुरू कर रहे हैं। ये बड़े मेहरबान और रहम करने वाले की तरफ से नाजिल हुआ है। कुरान ऐसी किताब है जिसकी आयत खोल खोल कर बयान की गई हैं, अरबी जुबान में है, उस कौम के लिए जो इल्म रखती है। ये बशारत देने वाला है, डराने वाला है। तो इनमें से अक्सर लोगों ने मुंह मोड़ लिया, तो वो इसको सुनते ही नहीं और वो कहते हैं हमारे दिलों में पर्दा, हमारे दिल, और वो कहते हैं जिस चीज की तरफ तू हमें बुलाता है उससे हमारे दिल पर्दों में हैं और हमारे कानों में बोझ है और हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है। तुम भी अमल करो, हम भी अमल करने वाले हैं। कह दीजिए मैं तो तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, मेरी तरफ भी वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तुम उसके लिए सीधे हो जाओ और उसी से ही बख्शिश मांगो। और मुशरिकों के लिए हिलाकत है वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते और वो आखिरत के साथ इनकार करते हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए ऐसा अजर है जो कि खत्म ना होगा। इस सूरत का दूसरा नाम फुस्सिलत है। ये सूरत उसी जमाने में नाजिल हुई जब कुरैश जुल्म सितम से इस्लाम का रास्ता रोकने से मायूस हो चुके थे और समझौते की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी थी। कुछ दो और कुछ लो के असूलों पर मफाहमत करना चाहते थे। रवायात के मुताबिक उतबा बिन रबिया जो कुरैशी सरदार था आपके पास आया, कुरैश के तफरका का जिक्र किया और कहने लगा अगर मालो दौलत चाहते हो तो दे देते हैं, मक्का की रियासत में या किसी बड़े घराने में शादी चाहते हो तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, और अगर तुम पर किसी जिन भूत का असर है तो तुम्हारा इलाज कराए देते हैं। आपने उसको इस सूरत की इब्तदाई आयात तिलावत की जिसे सुनकर इसका दिल नरम हो गया। जाकर कुरैशी सरदारों से कहने लगा मोहम्मद जो कलाम पेश करता है वो ना शायरी है, ना जादू है, ना कहानत है, तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। कुरैश कहने लगे तुझे भी मोहम्मद के जादू का असर हो गया है। कह दीजिए क्या तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिनों में पैदा किया, जिसने जमीन को 2 दिनों में पैदा किया और तुम उसके शरीक ठहराते हो। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन है और अल्लाह ताला ने उसके अंदर पहाड़ बना दिए उसके ऊपर से और उस जमीन में बरकत दी और 4 दिनों में उसके में रोईदगी की कुव्वतें रख दी जमीन के अंदर। ये जमीन तमाम हाजतमंदों के लिए बराबर है, जो भी इसमें खेती बोएगा जमीन उसके लिए अपने खजाने उगल देगी। फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और आसमान उस वक्त धुआं था। अल्लाह ताला ने उसे भी कहा और जमीन को भी कहा तुम दोनों खुशी से आते हो कि नाखुशी से आते हो। वो दोनों कहने लगे हम तो खुशी से अल्लाह तेरे फरमाबरदार होते हैं। अल्लाह ताला ने इनको 7 आसमान बना, इनका फैसला 7 आसमान कर दिया 2 दिनों में और हर आसमान को उसका कानून वही कर दिया और हमने दुनिया के आसमान को चरागों से सजा दिया और हिफाजत का काम भी लिया। ये अंदाजा है जबरदस्त और जानने वाले का। अगर वो मुंह मोड़ ले तो ए नबी फरमा दीजिए मैं तुम्हें ऐसी कड़क से डराता हूँ जैसी कौमे आद और कौमे समूद पर कड़क आई थी जब उनके पास उनके रसूल उनके आगे से आए थे और उनके पीछे से आए थे कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। उन्होंने कहा अगर अल्लाह हमारा रब चाहता तो वो फरिश्ता नाजिल कर देता, हम जो तुम देकर भेजे गए हो उसके साथ इनकार करते हैं। रिवायत के मुताबिक उतबा बिन रबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस सूरत की इब्तदाई आयात सुना दी। वो बुनियादी तौर पर तो आपके पास एक समझौते की तजावीज लेकर हाजिर हुआ था। उसके सामने आपने इस सूरत की जब तिलावत फरमाई और जब आप इस आयत पर पहुंचे कि अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो मैं तुम्हें उस कड़क से डराता हूं जैसे कौमे आद और कौमे समूद पर कड़क आई थी।
اور جب ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے، جب اس آیت پر پہنچے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جلدی سے اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہیں یہ عذاب فوری طور پر ہی نازل نہ ہو جائے۔ جب ان کے پاس ان کے رسول ان کے آگے سے بھی آئے تھے، پیچھے سے بھی آئے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ایک فرشتہ نازل کر دیتا، لہذا جو پیغام تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور جو قوم عاد تھی انہوں نے زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا اور وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا خالق ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ ہم نے قوم عاد پر ایک تند و تیز آندھی بھیج دی منحوس دنوں میں، تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ دنیا کی زندگی میں کوئی دن بھی کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتے، ہاں جو قومیں گناہگار ہوتی ہیں ان پر جب عذاب آتا ہے تو وہ دن ان کے لیے منحوس ہو جاتے ہیں ان کے عمل کی بنا پر، ورنہ وہی دن مومنوں کے لیے خوشخبری کے دن ہوتے ہیں، جبکہ ان مومنوں کو نجات دے دی جاتی ہے۔ تو اپنے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہوتے، لوگوں کے بداعمال ہی اسے منحوس بنا دیتے ہیں تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور تب ان کی مدد بھی نہ کی جا سکے گی۔ اور جو سمود تھے ہم نے انہیں بھی ہدایت دی تھی، لیکن انہوں نے راستہ دیکھنے کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کر لیا، تو انہیں بھی کڑک کی صورت میں ذلت کے عذاب میں پکڑ لیا جو کہ ان کی کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے تھے اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ پرانی قوموں کی بار بار اللہ تعالی داستان اس لیے سناتے تھے تاکہ کفار مکہ کو سمجھ آئے اور تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے مسلمانوں کو بھی تسلی ہوتی تھی کہ انشاءاللہ تعالی یہ ظلم و ستم کے دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالی ہماری داد رسی کرے گا اور یہ لوگ ظالم لوگ جو ہیں ان کو ان کے ظلم کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان